सो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो हमने देखा था कि दो ग्रुप्स लेते हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स लेते हैं डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन से एसोसिएटेड और उनके बीच एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है कि वो फंक्शन अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन को होल्ड कर जाए, जैसे द ऑपरेशंस इमेज ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन elements of G, image of operation between element of G is equal to operation between images in G dash, then this is what? This is homomorphism. That is if this holds, this is function, this is our function. Let's see G dash with the two groups with two different binary operations, then we define a function G and G dash such that for all xi belongs to G, f of x star y, this is operation between Z1 and images of that operation, is equal to, this is x, f of x, this is in G dash, f of y, this is in G dash. So operations between images of x and y, okay, if it is equal, then we say that this is homomorphism. Now again, in addition with that property, if we include some other properties, just like if f happens to be 1 1, then we say that f is monomorphism. If f happens to be on 2, then we say that f is epimorphism. If it happens to be both 1 1 and on 2, then we say that this is isomorphism. And the term when we get isomorphism, we can see that it can be represented in different languages for our understanding or better understanding. So the first one is isomorphism is indirect equality between algebraic structures. Isomorphism is indirect equality between algebraic structures or between two systems. In our life, we can't say only in groups also, only groups. We can say that in our life, if the two systems acts in the same manner, then they are identical, they are isomorphic. Second one is if two systems behaves exactly in same manner. The word system, it is associate in broader way. If two systems behaves exactly in same manner, then we say that those two systems are isomorphic to each other. This is repeated, so we can remove it. Those systems are isomorphic to each other. Now third one is if G1 isomorphic to G2, then what it means? G1 isomorphic to G2 means that G1 and G2 represents the same object. Objects means structure. G1 and G2 represents the same structure in two different languages. Just like अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण भोजपुरी में लिख दी जाए, ठीक है, और हिंदी में लिख दी जाए। भोजपुरी इसलिए आई क्योंकि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, तो इसलिए प्रेफरेंशियल हो जाती है। तो दो अलग अलग भाषाओं में लिख दी जाए, भोजपुरी और हिंदी, तो वो रामायण तो वही रही, बस उसको कहने का तरीका हमारा बदल गया, ठीक है, या व्याख्याएं बदल गई, ठीक है। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्याएं करते हैं। कुमार विश्वास को सुनेंगे तो वो अपने अपने राम के अनुसार व्याख्या करेंगे, और कुछ और लोगों को सुनेंगे तो उसकी उल्टी व्याख्या करेंगे। तो सबकी अपनी व्याख्याएं हैं, रामायण वही है, रामचरितमानस वही है, ठीक है। तो किसी भी बुक को लें, एक्सप्लेनेशन गीता को लेके 10 एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद हैं। दैट स्ट्रक्चर इज सेम, गीता इज सेम, वी हैव डिफरेंट explanation in different languages also and on different aspects. So that system is isomorphic to another one, okay. ट्रांसलेशन इंग्लिश में गीता उठा के लाएं या हिंदी में उठा के लाएं, सेम है, बस उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो गई, अलग हो गई है। तो G1 and G2 represents the same object or structures in two different languages, means groups are abstractly identical, means everything between G1 and G2 gets preserved. ये नहीं बदलेगा, G1 और G2 के बीच चीजें नहीं बदलेंगी। अगर आप दो रामायण उठा के लाते हो
दो अलग अलग राइटर्स की, तो उनके बीच की जो मूल चीजें हैं ना वो नहीं बदलेंगी, वो बिल्कुल नहीं बदलेंगी, वो वही रहेगा। ठीक है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, अनुवाद अलग हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें बिल्कुल नहीं बदलती हैं। ये रहा आपका टोटल आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, जहां की हमको पहुंचना था। इंटरेस्टिंग बात ये होती है ना कि कई बार इसको समझने के लिए कुछ बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स लाइफ में भी मिल जाते हैं। जैसे आइसोमॉर्फिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि मान लो ब्रह्मांड में कहीं कोई है, यूनिवर्स में कहीं हमारे अलावा कोई और भी तो होगा, ये तो पक्का है कि कोई ना कोई होगा। स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा बोला था। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेके चलें, कुछ वहां पे सिग्नल भेजें, ठीक है, कि जैसे यूनिवर्स में जो सबसे पहला सिग्नल भेजा गया था, जो सबसे पहला सिग्नल भेजा गया था वो था ये, वो सिग्नल था ऐसा मीन्स नो, ये पहला सिग्नल भेजा गया था यूनिवर्स में सबसे पहला। और जो इसके प्रोग्रामर थे, जो जहां से ये प्रोग्राम होता है उसे हम नाम देते हैं सेटी। सेटी बोला जाता है, SETI, सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंसी, ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। यहां से सिग्नल भेजा गया था, ये स्पेस में सबसे, यूनिवर्स में सबसे पहला सिग्नल जो भेजा था ये बोला था कि कहीं कोई इसके आइसोमॉर्फिक होगा जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होगा, सेम सिस्टम होगा तो रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है, इसी आशंका में इसे भेजा गया था। और आज तक ये प्रोसेस जारी है कि अगर हम भेजते रहे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आइसोमॉर्फिज्म होगा, किसी न किसी के बीच चीजें प्रिजर्व्ड रहेंगी और वहां से रिप्लाई आएगा। ठीक है, इंतजार इसी का है, देखते हैं ये होने के बाद बाकी दुनिया में कौन सा दरवाजा खुलता है। चलिए, तो उस आइसोमॉर्फिज्म तक हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद कुछ एक डिफिनीशंस और हैं हमारे पास, जैसे इंडोमॉर्फिज्म, कि इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो जब F होमोमॉर्फिज्म हो जाए और दोनों ही ग्रुप्स को G1 और G2 को सेम कर दिया जाए, दैट इज, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, F is homomorphism between same group then it is called endomorphism. Then it is called endomorphism. Okay, और F is homomorphism on group itself. ठीक है, सेम ग्रुप ले लें या ठीक है, या लिखें ग्रुप itself, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और F is homomorphism from a group to itself, from a group to itself, then it is called endomorphism. यहां पे I नहीं होगा, E होगा, ध्यान रखा जाता है वर्ड्स का भी। तो आप इसे ले सकते हैं, दिस इज इंडोमॉर्फिज्म। नाउ अगला आप देखिए, ये तो पहला पॉइंट था हमारा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए, ठीक है, ये तो होमोमॉर्फिज्म था, खुद के ग्रुप से खुद ही के ग्रुप पे। आइसोमॉर्फिज्म भी अगर खुद के ग्रुप से खुद ही के ग्रुप पे हो गया, एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप to itself,
then it is called ऑटोमॉर्फिज्म। कौन सा? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो आपका है वो है कि अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाता है ना, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इफ F is onto homomorphism, onto homomorphism, अगर हमारा F क्या हो जाए? onto homomorphism हो जाए, ठीक है, देन G डैश को क्या बोलते हैं? G डैश, जो जिसमें रिजल्ट्स मिल रहे थे वो वाला सिस्टम, G डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज, homomorphic image of G, homomorphic image of G। तो ये रही चीजें, आप इसको चाहो तो ब्रैकेट कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये काम आएंगी। ऑटोमॉर्फिज्म, G डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, ओके, दिस इज एंडोमॉर्फिज्म। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी होंगी, ठीक है, कि क्या क्या है। आप देखो, आइसोमॉर्फिज्म में हम दो डिफरेंट ग्रुप लेते थे और कहते थे ये आइडेंटिकल हो जाए, इनका बिहेवियर सेम हो जाए, ठीक है, दो डिफरेंट ग्रुप और सेम बिहेवियर, ठीक है, और क्लोजर थोड़ा आते हैं, थोड़ा और क्लोज करते हैं, हम कह रहे हैं सेम ग्रुप और सेम बिहेवियर, दिस इज सेम ग्रुप फ्रॉम अ ग्रुप टू इटसेल्फ, फ्रॉम अ ग्रुप टू itself, sorry, from a group to itself, खुद ही पे हो जाए, कोई खुद ही पे मैप कर रहा है, ठीक है, तो वो तो पूरी की पूरी तरीके से सेम हो गया ना, उसमें कुछ डिफरेंट करने के लिए रह ही नहीं गया, तो उसे कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म इज मोर क्लोजर देन आइसोमॉर्फिज्म, सबसे ज्यादा दूरी पे होगा होमोमॉर्फिज्म, उससे मोर क्लोजर पे आएंगे तो हमारा आएगा वन होमोमॉर्फिज्म, उससे आगे आएंगे ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, उससे ऊपर आएंगे क्लोज करने के लिए तो उससे ज्यादा क्लोजर होगा आइसोमॉर्फिज्म, और उससे ज्यादा क्लोजर जाना हो तो ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये चीजें हैं, कुछ एक छोटे मोटे एग्जांपल्स फटाफट देख लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लासेस में कुछ नए और अच्छे बेहतरीन प्रॉब्लम्स के साथ। अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका कोई ग्रुप हो, कहां से कहां, ठीक है, ये रियल नंबर विथ ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है, और ये दूसरा ग्रुप हो पॉजिटिव रियल नंबर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रियल नंबर ग्रुप बनाता है बट एडिशन के साथ, और पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाएगा, हमेशा बनाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी 1, सबके इनवर्सेस में मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो तो इसमें इंक्लूड है नहीं तो जीरो से दिक्कत आनी नहीं है। तो ये है, ये G1 है, ठीक है, ये क्या है? G2 है। फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ x इक्वल टू a पावर x, ठीक है, x कहां से बिलोंग कर रहा है? G से। कहां से बिलोंग कर गया? G या G1 से बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, तो कंडीशन क्या चेक करनी है कि हम इमेज लेंगे G1 के बीच एलिमेंट को ऑपरेशन कराने का, G1 के बीच जो ऑपरेशन होगा ना उसका इमेज लेंगे। G1 के बीच कौन कौन से एलिमेंट है? X और Y, इनके बीच कैसा ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन का। G1 के बीच कैसा ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन का। एलिमेंट कौन से? X और Y। इनकी इमेज किसके बराबर आनी चाहिए? इसके बराबर आनी चाहिए। इनकी इमेज इसके बराबर आनी चाहिए। भाई x की इमेज f ऑफ x, y की इमेज f ऑफ y, f ऑफ x चला जाएगा G2 में, f ऑफ y चला जाएगा G2 में। तो ऑपरेशन, इमेज ऑफ ऑपरेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स इन G1 इज इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस
इन G2, ये होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा प्लस और डॉट, ठीक है, ये एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन का इमेजेस है, और जब वापस हम जाएंगे तो ये डॉट हो जाएगा, क्योंकि इमेजेस के बीच ऑपरेशन करनी है। ऑपरेशन की इमेज और इमेज की ऑपरेशन, ये दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो यहां चीजें बदली हैं थोड़ी सी। सो चलिए, टू प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना है। सो प्रूफ करना है तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। सो हम क्या कर दें, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, ये दिया हुआ था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, ए पावर एक्स प्लस वाई, और ये ब्रेक हो जाता है किस में, ए पावर एक्स डॉट ए पावर वाई में। और ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स था और ये एफ ऑफ वाई था। एफ ऑफ एक्स अगर ए पावर एक्स है तो एफ ऑफ वाई ए पावर वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू G1, सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। चलिए ये रहा होमोमॉर्फिज्म। अगला एक और एग्जांपल छोटा सा और जल्दी से। फंक्शन ग्रुप कौन सा, ग्रुप हम लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इस बार। यहां पे क्या था, अब देखो कहां से कहां मिला था, आप अगर देखोगे प्लस डॉट आर प्लस, इसको बस रिवर्स कर लिया, रिवर्स कर लिया तो ये था, अरे रिवर्स कर लिया तो क्या था, ये ऐसा, ये आ गया था। अब कंडीशन दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर एक्स, ये दिया हुआ है, बताना है होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो क्या प्रूफ, क्या लेके चलना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, लॉग ऑफ बेस ई एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ई एक्स, लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस, सॉरी प्लस नहीं डॉट ना, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या कर रहे हैं, डॉट लॉग ऑफ y बेस e, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ y। कुछ गलत हुआ, गलत तो हुआ, यहां पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ना, ये देखो यहां सारा का सारा गलती। इनके बीच ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था, तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए यहाँ पे x डॉट वाई, तो log ऑफ x डॉट वाई, log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, दिस इज एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई। ए पावर x का जस्ट उल्टा तो है, ये एक दूसरे के इनवर्स ही तो है ना, ऐसा ही तो होता है कुछ, ये इनवर्सेस, ठीक है। तो हमने ग्रुप्स एक्सचेंज किए, तो भी ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म हो रहा है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम्स पे, और देखेंगे कि वो वन वन ऑन टू हो रहा है कि नहीं, कुछ और प्रॉपर्टीज इनबिल्ट हो रही है कि नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म पे पूरा समय देना है, अच्छे से समझना है। अब यहीं से आपकी ग्रुप थियरी एक्चुअली स्टार्ट होती है, और यहां से ही स्टार्ट होता है आपका वेक्टर स्पेस, रिंग थियरी, सारी चीजें। कोई अगर कभी पूछे कि ग्रुप थ्योरी पढ़ने के पीछे मेन एक्सपेक्ट क्या है, रीजन क्या है, तो आपको कहना होगा होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इसीलिए पढ़ रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी है इसको जानना, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो दो ग्रुप्स के बीच ऑपरेशन की बात हो रही है, उसके बीच मैपिंग की बात हो रही है, मैपिंग बिटवीन टू ग्रुप्स। और जब ग्रुप के मैपिंग के बीच बात होगी तो सब ग्रुप की भी मैपिंग कराएंगे, कोशेंट ग्रुप की भी मैपिंग कराएंगे, नॉर्मल ग्रुप की भी मैपिंग कराएंगे, ठीक है, ये सारी चीजों की मैपिंग कराएंगे, सेंटर ऑफ ग्रुप की मैपिंग कराएंगे। तो इससे फायदा होगा कि एक के बारे में जानकारी उठाएंगे और दूसरे के बारे में जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। तो ये हमें करना है इसमें। चलिए फिर मिलेंगे अगले टर्म पे, तब तक के लिए
आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत कीजिए। इसका दूसरा कोई शॉर्टकट आज तक नहीं बना और आने वाले टाइम में भी बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।